اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ شعبان المعظم کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، تو اس مہینے میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں ان 3 کاموں پر ضرور عمل کرے۔ وہ کون سا؟ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس کی کیا ہی کہنے، کیا ہی عظمت ہے اس کی انشاءاللہ۔ تو اس پاک مہینے میں جو ہمیں آگے خوشخبری دیتا ہے کہ اس کے بعد رمضان المبارک ہے، تو نبی پاک نا جیسے ہی 1 2 3 مہینے رہتے کہ ہاتھوں پر آپ بآسانی گن سکتے ہوں، تو نبی پاک ہاتھوں کی انگلیوں پر گنتے تھے، گن کر یہ صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ اب اتنا ٹائم رہ گیا رمضان المبارک میں۔ اور جب شعبان کا مہینہ آتا تو شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں پر دنوں کو گزارتے تھے کہ اتنے دن رہ گئے ماہ رمضان میں، جو برکتوں والا اور بہت ہی زیادہ انسان کے لیے بابرکت مہینہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میں ایک رات ایسی ہے، 15ویں رات، جس کو شب بارات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو قبیلہ بنی کلب یہ ایک قبیلہ تھا جس کے پاس بے حساب بکریاں تھیں، بکریوں کے بہت بڑے بڑے ریوڑ تھے، یعنی اتنی بکریاں تھیں کہ گننے میں حساب میں نہیں آتی تھی، بہت بڑی تعداد میں ان کی تھی، اور جس وجہ سے وہ مشہور تھا کہ بکریوں والا قبیلہ کے نام سے وہ مشہور تھا وہ قبیلہ، کہ ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں۔ تو اللہ نے ان کی پھر نبی پاک نے مثال دی کہ اللہ پاک اتنے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے کہ جتنے ان کے بکریوں کے بال ہیں۔ تو ایک بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں یہ ہم حساب نہیں لگا سکتے، تو پورے قبیلے، یعنی اتنا اللہ پاک کریم ہے کہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو پھر وہ انسان کتنا بد نصیب ہوگا کہ جو شعبان کا مہینہ بھی پائے اور شب بارات کو بھی پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو لازمی تو سب سے پہلا اس مہینے میں کام یہ کرنا ہے، تو جیسے ہی شعبان کا مہینہ سٹارٹ ہو یا رمضان المبارک آنے والا ہو، تو آپ رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے سٹارٹ کر دیں۔ رمضان المبارک کی تیاری کیسے سٹارٹ کرنی ہے؟ رمضان میں ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہوتی ہے، فرض ہو جاتے ہیں روزے۔ تو ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کر دے انسان، شعبان کے مہینے سے ہی شروع کر دے روزے رکھنا، تاکہ ہم رمضان المبارک کے لیے پریکٹس ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے اور چھوڑتے بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا مہینہ آپ روزہ رکھیں اور جب فرض روزوں کی باری آئے تو انسان کے اندر اتنی طاقت ہی نہ ہو کہ انسان روزے رکھ سکے، بلکہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، انسان کو روزے رکھے اور اپنی استطاعت کے مطابق رکھے۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے تو الحمدللہ پڑھے، اور اپنی اس صحت کو قیمتی جانتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزے رکھیں۔ تو رمضان المبارک میں ہم زیادہ کیا کرتے ہیں، روزے فرض ہیں تو پھر شعبان سے ہی دن چھوڑ کر 1 1 2 2 روزے انسان رکھے، تاکہ رمضان کے لیے ہماری پریکٹس شروع ہو جائے۔ ایک تو ہمیں ثواب ہوگا، دوسرا ہماری روٹین بھی بن جائے گی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے 5 10 یا 15 روزے گزرنے کے بعد انسان کی روٹین بنے، جب تک روٹین بنتی ہے تب تک تو رمضان ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے روٹین بنی ہو تاکہ پہلے روزے سے ہی ہم بالکل حشاش بشاش ہوں اور ہمیں اپنی روٹین بنانے میں ہفتہ 10 دن نہ لگے۔ تو نمبر 1 پر روزے رکھ لیں۔ نمبر 2 پر جو ہم زیادہ رمضان المبارک میں کام کرتے ہیں وہ ہے نماز تراویح۔
तरावी की नमाज बड़ी बरकत वाली नमाज है। ये सुन्नत मुअक्किदा है जिसको हर मुसलमान मर्द और औरत को पढ़ना ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की और छोड़ भी दी, क्योंकि अगर नबी पाक लगातार अदा फरमाते तो हमारे ऊपर ये नमाज फ़र्ज़ हो जाती। तो फ़र्ज़ ये सुन्नत मुअक्किदा है, तो इसको यानी बिला वजह बग़ैर किसी उज़र के, ना कोई बीमारी है, ना कोई आपकी कोई दुनिया का ज़रूरी काम है, ना कोई आपको किसी किस्म की परेशानी है, बस जानबूझकर मस्तियों में छोड़ें तो उलमाए किराम ऐसे इंसान को फिर गुनाहगार ठहराते हैं। जानबूझकर ऐसा इंसान नमाज तरावी को नहीं छोड़ सकते, गुनाहगार होंगे। नमाज तरावी, तो नमाज तरावी की प्रैक्टिस कैसे की जाए? आप ऐसा करें कि क्योंकि नमाज तरावी इशा के बाद पढ़ी जाती है, तो इशा की नमाज के साथ कुछ नवाफिल पढ़ना एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर दें। शाबान के महीने में नवाफिल पढ़ना शुरू कर दें या बैठकर ज़्यादा ज़िक्र अज़कार करना शुरू कर दें, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए और रमज़ान में पहले दिन से ही हम मुकम्मल तरावी पढ़ें और बिल्कुल सेहतमंद हशाश बशाश हों, और हमें किसी किस्म की रूटीन बनाने की और पूरा महीना हम आसानी के साथ रमज़ान मुबारक की बरक़ात को समेट सकें। तो क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, और इनमें एक रात ऐसी आ जाती है कि जो 15वीं शब है, यानी शब बारात जिसको कहा जाता है। दिन को 14 शाबान है, 14 शाबान को मगरिब के बाद फिर 15वीं रात आ जाती है। उस रात को इबादत करनी है और इंशाअल्लाह ताला उस रात में तस्बीह वाली नमाज ज़रूर पढ़ें। इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, और सलातु तस्बीह नमाज का मुकम्मल तरीका ये वीडियो मैंने अपलोड की है, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका मैंने शेयर किया है। बहुत बड़ा अजर व सवाब है इस नमाज पढ़ने का। अगर कभी किसी इंसान का कोई दुआ कबूल ना होती हो, नमाज तस्बीह सलातु तस्बीह की नमाज आप पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि आपका काम जो सालों से नहीं अटका हुआ था, आप पढ़ेंगे, आपका फ़ौरन वो काम वो मसला आपका हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपने क्या करना है, नंबर 2 पर नवाफिल की कसरत करनी है इस महीने में। नंबर 3 पर इस्लामी बहनों के लिए ख़ास तौर पर ये मेरी पैगाम है कि आप रमज़ानुल मुबारक में अपने आप के लिए इबादत के लिए आप टाइम निकालें। अगर आप कोशिश कर सकती हैं कि आप अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लें, इससे ये होगा कि आपके रमज़ानुल मुबारक में आपको किसी किस्म की टेंशन ना हो। आप अपने सारे काम जो होते हैं घर के, सफाइयाँ सुथराइयाँ और सारा वो पहले से ही कर लें, ताकि रमज़ानुल मुबारक जैसे स्टार्ट हो तो हमें इस चीज़ की टेंशन ना हो कि पहला रमज़ान है, अभी हम जी पूरा अपने किचन की डीप क्लीनिंग करें या अपने रूम्स की। तो पहले ही आप इतनी अच्छी से सफाइयाँ कर लें कि आपको जैसे रमज़ान आए आपको किसी किस्म की टेंशन ना हो। और फिर रमज़ानुल मुबारक से पहले अपने लिए आप ख़ास तौर पर एक जगह मुख्तस कर लें इबादत की, कि अपने घर के कामों से फ़ारिग होकर आप इबादत कर सकें। अगर तो कुछ बहनें ऐसे करती हैं, कुछ फूड आइटम बनाकर उसको फ्रीज़ कर देना कि ताकि रमज़ान में हमारे लिए कोई मसला ना हो, या सब्ज़ियां वगैरह काट कर रख देना, फ्रीज़ कर लेना, तो यह भी बहुत अच्छी बात है। आप पहले ही अपने लिए चीज़ें आप फ्रीज़ कर दें, तो इससे आपको क्या होगा कि आसानी हो जाएगी रमज़ानुल मुबारक में, कि बजाय इसके कि आप पूरा दिन आप सब्ज़ियाँ काटने में गुजार रही हैं, आप चीज़ें बनाने में गुजार रही, तो आप इबादत के लिए ज़्यादा वक्त आप लगाएं। देखिए कि खाने पीने के लिए हमारा पूरा साल, पूरे 11 महीने हमारे पास होते, रमज़ानुल मुबारक में जो इबादत है उसका सवाब डबल दिया जाता है। तो इस्लामी बहनों के लिए घर वाले ख़ास तौर पर सारे रमज़ानुल मुबारक में बेशक रोज़ा होता है, सबको भूख लगी होती है, प्यास लगी होती है, तो आसानी करें अपने घर की ख़वातीन के लिए कि कोशिश करें कि इतना खाना कि वो जल्दी जल्दी बना सकें और अपने लिए वो करें। वो बेचारी क्या करती हैं कि अक्सर ख़वातीन को देखा गया है कि अभी ज़ोहर की नमाज का टाइम ही नहीं होता, या नमाज पढ़ के तो वो पूरा दिन उनका किचन में गुजर जाता है, और जैसे ही रात को काम उनका ख़त्म होता है थोड़ी देर से सोना और फिर आधी रात को उठकर फिर किचन में चले जाना, यानी उनकी सहरी इफ्तारी का ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में गुजर जाता है। तो वो बेचारी फिर कब नमाज से पढ़ें, और कब यही टाइम होता है नमाज़ें पढ़ने का और सारी इबादत करने का। तो इतना काम ख़वातीन के ज़िम्मा हो कि वो बआसानी अपने घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद इबादत को ज़्यादा
टाइम दें। सुबह सहरी में अगर एक ही डिश बनी हो, एक ही तरह का खाना बना हो तो सारे लोग वही चीज़ खा लें, तो फिर रोज़ा रख लें। तो ख़वातीन को ये है कि तहज्जुद की नमाज़ में उठने के लिए उनको आसानी होगी। अब एक घर में सारे अफराद, माएँ बेचारी, एक बच्चा कह रहा है मैंने ये नहीं खाना, दूसरा कह रहा है मैंने वो नहीं खाना, तो इसी तरह माओं के लिए परेशानी का बायस हो जाता है। वो बना तो देती हैं, सवाब भी मिलता है उनको, लेकिन इबादत का टाइम फिर नहीं मिलता उनको। वो इनकार भी नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें पता है कि रोज़ेदारों के लिए बनाना कितना सवाब का काम है। तो ख़वातीन खुश होकर बनाती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ख़वातीन को टाइम देना चाहिए नमाज़ें पढ़ने का, इबादत करने का। और एक बहन ने कहा कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और किचन से जैसे ही इफ्तारी से फारिग होते हैं वो बर्तन धुलते हैं, फिर उसके बाद फिर खाने के बर्तन आ जाते हैं, फिर चाय वगैरह के बर्तन आ जाते हैं, यानी बार बार हमारा पूरा टाइम जो है वो बर्तनों में गुजर जाता है, और फिर हमें इबादत का टाइम नहीं। और जैसे इबादत का टाइम आता है तो जैसे तरावी का टाइम आता है तो उस ख़वातीन इतनी थक जाती हैं घरेलू कामों से कि वो इबादत नहीं। तो इसलिए ऐसा करना चाहिए कि मुख्तसर चीज़ें रखें, अपनी ज़िंदगी को आप आसान बनाएं, ख़वातीन के लिए आसानियाँ पैदा करें, और आप क्या करें कि ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत को वक्त दें। आप उसके बाद जैसे गुज़र जाएगा रमज़ान के महीने के बाद, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी दे। उसके बाद फिर 11 महीने हैं, आप जो है जो मर्ज़ी आपका दिल करे आप बनाएं, वो आप चीज़ खाएं, जिस चीज़ का दिल करता है आप वो पूरा पूरा दिन लगा कर बनाएं। तो रमज़ानुल मुबारक जो है ये खाने का महीना नहीं है, रमज़ानुल मुबारक इबादत का महीना है, ये अपने जहन में बिठा लें। अच्छा, हमने अक्सर देखा है ख़वातीन बेचारी वो चीज़ें बना रही होती हैं जो बाकी पूरा साल वो नहीं बनाती हैं, यानी इतने उनके ऊपर वो आ जाता है, बर्डन आ जाता है। ज़ाहिर सी बात है घर वाले खुश होकर जब खाएंगे तो वो ख़वातीन की बनाती हैं, खुश हो जाती हैं माएँ कि हमारी फैमिली। तो जब फैमिली वाले ना इस तरह करें कि ये चीज़ नहीं बनानी वो भी, तो फिर ख़वातीन के लिए ईज़ी हो जाता है अपने लिए फिर इबादत के लिए टाइम निकालने का। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाकी तमाम बहनों के साथ इसको लाजमी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।